Our Vartman e-learning class. Hope you all of you fine at your home. So today we start a new chapter, that is the heroin's formula regarding to the area of a triangle. Okay. So in this chapter, first discussed about the basic concept. Like that is the chapter 12, heroin's formula. This is the basically regarding to the area of a triangle. Okay, but in the mind we have get this, the sir area of triangle is the half into base into height, है ना? आप लोगों को पता है ना कि A B C, this is the height of a triangle and this one is the base, so area is equals to half into base into height. ओके, ये आप लोगों को सबको पता है. ये मैंने आपको पहले ही क्लास में बता दिया है कि ये पहले अपन पढ़ के आ चुके हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो ये हीरोइंस फॉर्मूला पढ़ने की कहाँ जरूरत आई, क्यों पढ़ा, क्यों किया? बट अभी कोई न कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर ये तो ट्रायंगल राइट एंगल है, अगर मेरे पास ट्रायंगल जो है इस फॉर्म में हो जिसकी तीनों ही साइड क्या हो, अनइक्वल हो, that is the form of scalene triangle, then how we find the area of triangle? Because in this case there is the no height, base is the given but height is no given. That time how is it possible to find the area of triangle? For this purpose find out the heroin's formula. Okay, तो हेरोइंस फॉर्मूला का यूज होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना इन केस ऑफ स्केलेन ट्रायंगल. लाइक दैट, देखिए कैसे. द हेरोइंस फॉर्मूला इज एरिया इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वेयर S is equals to semi-perimeter and A comma B comma C is sides of a triangle. Sides of a triangle. So basic the simple formula, that is the S is the semi-perimeter and A, B, C is the sides of a triangle. This formula is the square root of S minus A, S minus B and S minus C. This formula you have to note down in your notebook right now. Okay, then after this, ये फॉर्मूला हो गया नोट डाउन, लिख लिया आप लोगों ने. ओके, तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं. अगर ये फॉर्मूला लिख लिया है तो अब हम एक क्वेश्चन कैरी ऑन करते हैं कि इस फॉर्मूले से वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे फाइंड आउट होगा. चलिए, अपन ने एक ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल के अंदर 20 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर, सी हो गया आपका 25 सेंटीमीटर. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड perimeter, that is the A plus B plus C, sum of all sides, because the perimeter of triangle is the sum of all sides. So this one is a 20 plus 35 plus 25, that is the 50, 55 and 60 and 80. So S is equals to P upon 2, half of the perimeter, that is the semi perimeter. Okay, so 80 divided by 2, this is the 40. Now S minus A
40 minus 20, that is the 20. S minus B, 40 minus 35, that is the 5. S minus C, 40 minus 25, that is 15. Okay. After this, area is equals to square root of S, S minus A, S minus B and S minus C. This one is the formula of area. Put the all values. S is the 40, S minus A is 20, S minus B is 5 and S minus C is 15. Now there is the question arise that, sir, how to solve this square root. So in this square root there is the two methods. Multiply all these and find the square root of number. Otherwise take splitting method like that. 40 is the 4 into 10, या आप इसको लिख सकते हो 8 into 5. ओके, 20 4 into 5 5 ही रहेगा और 15 3 into 5. नो प्रॉब्लम. अब हम लोग पेयर्स बनाएंगे. अगर पेयर्स में देखें, ये 5 का एक पेयर बना, तो जो डबल वैल्यू आती है, जो डबल वैल्यू में 5 का जिसका भी पेयर बन रहा है उसको बाहर ले लो. 5 अगेन ये 5 का पेयर बना तो एक 5 और बाहर आ गया. पीछे बच रहा है मेरे पास 4 किसका स्क्वायर रूट होता है? 2 का. तो अगेन 2 बाहर ले लो. अब बच रहा है 8 into 3. अब क्या बच रहा है? 8 into 3. चलो 25 2 जा 50 और ये हो गया 8 3 जा 24, है ना. 24 और हो रहा है 50, ये हो जाएगा 4 into 6. अगेन 4 का 2 बाहर आ जाएगा तो 100√6 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस वन इज द फाइनल एरिया. सो आपको करना कुछ नहीं है, स्प्लिट करते जाओ, 2 के पेयर्स बनाओ. जो डबल के पेयर बन रहे हैं उसको सिंगल वैल्यू को क्या ले लो बाहर, और लास्ट में अगर स्क्वायर रूट में बच रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये होता है हेरोइंस फॉर्मूले के थ्रू एरिया निकालने का कंसेप्ट. जल्दी से इसको अपने नोटबुक में नोट डाउन करो, फिर मैं आपको क्वेश्चंस देने वाला हूं जो आपको सॉल्व करने हैं और मुझे हाथों हाथ उसके आंसर सेंड करने हैं. ठीक है, मैं ये वीडियो देखते देखते आपको उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके मुझे उनके आंसर सेंड करने हैं within the 15 to 20 minutes. So first you have to note down this example in your notebook. After this I will give you some questions that you have to send your answer within the 20 minutes. Okay, so note it down everyone. Okay, then there is some questions that you have to अनमोल. समझ में आया ये क्वेश्चन? ध्यान से, क्योंकि अनमोल बहुत वीक रहता है. कभी कभी मैथ्स में कैलकुलेशन बहुत ध्यान से देखनी पड़ती है. अगर वो कैलकुलेशन में ऊपर नीचे हो गया तो अनमोल अपने ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा. तो इस चीज को थोड़ा सा सीरियस लेके करना. ठीक है, आई बात समझ में? तो हमें इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या है, मेनली कैलकुलेशन पे फोकस करना है. तो ये 9th क्लास स्टूडेंट अनमोल और ये अपने झील, ये सब ध्यान रखना. बेसिकली आप लोगों को कैलकुलेशन पे मूव ऑन करना है. निर्जरा, गॉट इट? तो थोड़ा सा ध्यान रखना आप कैलकुलेशन पे. ओके, क्योंकि हम मुझे पता है कि आप लोगों को कैलकुलेशन बहुत शार्प है, आप अच्छे से कर लेते हो, बट यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस का थोड़ा सा भी मिस्टेक हुआ रह जाएंगे, क्वेश्चन पूरा गलत हो जाएगा. तो अच्छे से करना. दिव्या, समझ में आया बेटा आपको? ओके, चलो अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, जो आपको मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ.
ये दो क्वेश्चन है जो आपको अभी नोट डाउन करना है और इन दोनों को सॉल्व करके मुझे आंसर भेजना है, ठीक है। अगर ये दोनों क्वेश्चन हीरोइंस फॉर्मूला से अच्छे से हो जाते हैं तो हम लोग कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग मूव ऑन करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि अकॉर्डिंग टू द हीरोइंस फॉर्मूला आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकाला जाएगा, फिर उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। तो आप लोगों को आज ये दो क्वेश्चन करने हैं और अभी राइट नाउ विद इन द 20 मिनट्स मुझे सॉल्व करके भेजना है। ओके 9th क्लास, गॉट इट एवरीवन? ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।